हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। आप लोग कैसे हैं? अगर आपने मेरा इंट्रो देखा हो, ये जो अभी आया था छोटा सा वीडियो, इसमें आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बारी अपीयर हो रहे हैं। आजकल हमारे न्यूज़पेपर्स में भी वो बहुत अपीयर हो रहे हैं। वो हर जगह छाए हुए हैं बिकॉज उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अच्छी या बुरी, वो न्यूज़ भी बना रही हैं, वो पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर रही हैं। और उसमें से एक उनका जो फेवरेट विपिंग बॉय है अभी, वो इंडिया है। और उनका एक जो बहुत ही क्या कहोगे आप, प्यारा प्यारा एक फेवरेट है, वो पाकिस्तान है। तो इससे पहले कि हम बाकी बात करें, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि अ, कितना ज़्यादा पाकिस्तान एक फेवरेट बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और सिर्फ उनका फेवरेट नहीं बना है, उनका पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो गई है। और ये जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, Called them both. And in this case, I use trade. I'm not going to trade with you. Used to two nuclear nations, big nuclear. And no at it. And I called them both. And in this case, I use trade. I'm not going to trade with you. Used to two nuclear nations, big nuclear. And no, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this freaking war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes. It was starting. There's a lot of bad blood. And I said, you do this, there's not going to be any trade. And I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. And we stopped it. It was a great thing. And the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important. तो आप देखेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 30 से 40 बारी, या हो सकता है ज़्यादा बारी, ये बात करी है कि भाई देखो, मैंने वॉर रुकाया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और ट्रेड को यूज़ करके। अच्छा, इनसे इन्होंने किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई इंडिया के साथ तो ट्रेड डील आपकी हुई नहीं है, तो आपने ट्रेड डील यूज़ करके या ट्रेड यूज़ करके आपने ये कैसे रुकाया? एनीवेज, हम इनका बाकी सुनते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड है Guy इसका। in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group. He said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on. And that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was. तो ये इनका पूरा पिछले 5 महीने से, जब से ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हुआ है मई 10th को, तब से ये डोनाल्ड ट्रंप अपना रट लगाए हुए हैं। उनको ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज ने, दे हैव नॉमिनेटेड हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज, तो वो बड़े खुश हैं इस बात से। लेकिन काफ़ी और चीज़ें भी चल रही हैं, और मैं आपको 3-4 छोटे-छोटे क्लिप्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि और क्या बोल रहे हैं लोग, और इसके पीछे और क्या-क्या राज़ हैं। Got to ask you, what do you think about what's going on with India? Donald Trump said that the first deal that he was going to make was with India. I'm best friends with Modi. And then he just started taking credit for resolving the India-Pakistan war, which is a very big, sensitive topic for India. Saying, you did not do that. Stop taking. He does that every day. And that, like, hurts everything there. And it, like, crushes them. That's not true. Donald Trump took, like, his family to Bitcoin from the Pakistani Bitcoin sovereign fund. And they brought in the general from the Pakistan to be there. And India's like, what the hell are you doing? And then meanwhile, you still have Apple building new factories because Tim Cook came in with a gold bar and he's building the factories in India. What do you make of what's happening there? I think this is one of the more underreported stories in Trump's foreign policy, and I'm really glad that you raised it. On a bipartisan basis, going back decades, the United States has worked to build its relationship with India, the world's largest democracy, a country that we should be aligned with on technology and talent and economics and so many other issues, and aligned with in dealing with this strategic threat from China. And we had come a long way on that. And now, in no small part, I think, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, Trump has thrown the India relationship over the side. That is a. तो इनका जो व्यू है, ये जैक सलिवन थे बाइडेन के एनएसए, और इनका व्यू है कि ये सब ट्रम्प फैमिली के वजह से है, एंड सो ऑन।
बट इसको मैं अब कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। यहीं पे एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अम, What are you taking from that? Yes, I think the timing is really driven by two things. I mean, we had the Israeli attack on Hamas in Qatar, which gave everyone the opportunity to break out into the open what had hitherto been a covert deal between Saudi Arabia and Pakistan. But the second item, which I think is equally important actually, is what happened on the 10th of May in the India-Pakistan clash. India really quite dramatically escalated that clash with attacks on 11 Pakistani Air Force bases. So Pakistan has suddenly and in a hurry got to recalibrate all its defense preparation. ओके, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट पार्ट था मैंने प्ले कर दिया। इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है वो तो इसलिए हुआ है बिकॉज़ इंडिया ने बहुत पिटाई कर दी थी 10 मई को और उनको डिफेंस के लिए एक नया स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि अलग-अलग कितने व्यूज़ हैं और सबका अपना एक थ्योरी है। उसका फंडामेंटल रीज़न ये है कि जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है और टैक्टिक्स हैं अभी, स्ट्रैट मोर लाइक पॉलिसी, वो उन्होंने क्लियर नहीं करी है। वो किसी को नहीं बता रहे या किसी को पता नहीं है या लोग बोल नहीं रहे हैं कि भई असली में क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली शिफ्ट है हमारे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में कि अमेरिका आपके खिलाफ काम कर रहा है। इवन दो मार्च अप्रैल में जब तक पहलगाम हुआ था तब तक अमेरिका आपके खिलाफ टैरिफ के लिए काफ़ी बातें कर चुका था, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने ऑपरेशन सिंदूर करा, आपका रिलेशन खराब बद से बदतर हुआ बहुत जल्दी और ट्रेड डील होने ही वाली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे साइन करने से मना कर दिया। बाय द वे ये कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं सारे डिटेल्स थ्रैश आउट करता, उसे साइन करना होता है बेसिक चीज़ें चेक करके, बट इट सीम्स एट द लास्ट मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप केम अप विद वियर्ड रीज़न इंक्लूडिंग रशियन ऑयल। तो ये मेरे हिसाब से दे वर नेवर इंटेंडिंग टू साइन अ डील और ये पिवट जो हुआ है, पिवट का मतलब जो ये स्ट्रैटेजी चेंज है, ये पहले से इनके दिमाग में थी। ये पूरी प्लान बन चुकी थी फरवरी में जब नरेंद्र मोदी गए थे व्हाइट हाउस में और उसको बस एग्ज़ीक्यूट करा गया है। पहले पहलगाम हुआ जब मोदी साहब सऊदी अरेबिया जा रहे थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर ये टैरिफ लगे, अब रशियन ऑयल की बात हो रही है, फिर H1B हुआ, फिर फार्मा पे टैरिफ लगा। देयर कुड बी समथिंग आई एम मिसिंग बिकॉज़ एवरी डे दे आर डूइंग समथिंग। मूवीज़ पे टैरिफ लगा। तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ डूइंग ऑन एवरी day basis. He is not doing anything with China. He is not doing anything much with Russia. Basically, वो अपना हाथ धोना चाह रहे हैं जहाँ तक रशिया यूक्रेन की बात है. Of course, he wants to keep it in play. लेकिन ही इज़ फोकस्ड ऑन इज़राइल राइट नाउ। वहाँ पे वो गाज़ा में उनका प्लान था और उन्होंने वो गाज़ा प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया सबके सामने। पहले उन्होंने ईरान को बॉम्ब करा इज़राइल और अमेरिका ने, फिर कतर के ऊपर इज़राइल ने बॉम्बिंग करी। उसके प्रीटेक्स्ट पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील कराई गई और फिर नेतन्याहू से कतर को सॉरी बोला गया और अब गाज़ा में रिकंस्ट्रक्शन और ये जो भी हमास की प्रेजेंस है उसके बेसिकली उसको शट डाउन कर रहे हैं और एक रिकंस्ट्रक्शन होगा और गाज़ा बेसिकली पैलेस्टीनियंस के हाथ से निकल गया है। तो ये सब अगर आप व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर इसका इसका ये मतलब है आप जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि इनका एंड गोल क्या है। तो अगर हम सिर्फ ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की पैक्ट की बात देखें, तो उसमें इज़राइल ने ईरान के ऊपर जो करना था वो कर दिया है मोटा-मोटा। जो कतर है उसको उन्होंने पैसिफाई कर दिया है और टर्की का इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है अभी, जबकि टर्की अपने आप को बड़ा खलीफा समझता है। तो आप देखोगे कि ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पिवट है बिकॉज़ सऊदी अरेबिया को किससे डर है फिर? अगर टर्की से नहीं है, इज़राइल से नहीं है, ईरान से नहीं है, तो किसके लिए ये पैक्ट करा गया है?
तो ये सीक्रेट पैक्ट्स जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे जहाँ तक मुझे समझ आता है वो इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं। और ये पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी ये है कि हम चाइना से अभी लड़ नहीं सकते। हम क्यों नहीं लड़ सकते? बिकॉज़ एक तो इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए, हम मतलब अमेरिका। और ये नहीं चाहते अमेरिकन्स की चाइना की पूरी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा इंटरडिपेंडेंस बना रहे। कुछ सालों में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल चीज़ों की करने लगेंगे और फिर हम चाइना को देखेंगे, तब तक हम इंडिया को दबा देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रहे हैं और ग्रोथ भी इनकी अच्छी है। सो इट डज़न्ट सीम टू बी प्लेइंग टू द अमेरिकन पॉलिसी। अमेरिकन पॉलिसी है कि भी आप बेस बनाओ चाइना के चारों तरफ और लास्ट इंडियन तक चाइना को लड़ो, और इंडिया ने उसके लिए कर दिया मना। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दो अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक अमेरिका के हैं, एक पाकिस्तान के हैं, और वो इसी टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक अलग तरीके से। एक ही बारी में मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट। वो अपने रीजंस दे रहे हैं कि भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव क्यों है ट्रम्प का। और फिर एशले टेलिस जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, वो बताएंगे आपको। The first one is to keep an eye out on Iran and Iran's sort of influence in the region and keep that in check. And the demonstration of that we've seen in the Trump administration have been the airstrikes on Iranian nuclear facilities. The second one is find a pathway in the Middle East to create a new sort of security architecture that not only checkmates Iran, which is related to the first point, but also expands the Abraham Accords. And the president is very much committed to that second part. And then the third is to keep in check in Afghanistan and in Central Asia, terror groups and make sure counter-terror operations continue in a way such that there's no strike on the homeland or on American interests. I mean, तो आपने सुना जो ज़ेर कह रहे हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव के अमेरिका के पास तीन रीज़न है। एक अफगानिस्तान, एक ईरान, एक ये अब्राहम अकॉर्ड्स जो इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में ट्रम्प कराना चाहते हैं। तो ये मोटा-मोटा तीन रीज़न दे रहे हैं। इसमें बाय द वे इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। ये अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे, कार्नेगी एंडाउमेंट चैनल का नाम है, तो आप वो सुन सकते हैं, आपको शायद उससे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम सुनते हैं ये एशले टेलिस क्या बोल रहे हैं। एशले टेलिस बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं वॉशिंगटन में। इन्होंने हमारी न्यूक्लियर डील एक तरीके से स्पीयरहेड करी थी अमेरिका के साथ 2008 में। और ये कुछ 1 डेढ़ साल से बहुत ही एंटी इंडिया, मतलब कि इंडिया वो नहीं कर रहा है जो हम चाहते हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ऐसे आर्टिकल्स में। I'm hard pressed to find a real logic. Okay. I think it's the president's own fascination with the praise that the Pakistanis showered in him after Which the was crisis, lavish. which was lavish. He enjoys that, Right. and so I think he embraced it, and he embraced it on premises that I think will prove not to be true. Mm-hmm. So the expectation that Pakistan can service American energy needs is highly questionable. Yeah. That Pakistan can serve as a new source of critical minerals, Yeah. I think is again highly questionable. Oh, So- and certainly unproven. And certainly unproven. तो आपने इतने सारे सोर्सेस सुने हैं और इन्होंने ये बोला एशले ने कि भाई जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के एजम्पशंस हैं पाकिस्तान की तरफ झुकाव के, वो सारे गलत प्रूव होने वाले हैं कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या एक बैलेंस क्रिएट करेंगे मिडल ईस्ट में, या फिर वो ऑयल या क्रिटिकल मिनरल्स का एक सोर्स बनेंगे, वो सब गलत है। तो अब मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ कि ये सब जो ये पूरा गेम है, ये सारा का सारा गेम ऑयल का है, रिसोर्सेस का है, और अमेरिका ने ये डिसाइड करा है कि वो चाइना से अभी कम से कम 5 साल के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं। वो उनसे एक सुलह बना के रखना चाहते हैं। चाइना भी कुछ सफ़र कर रहा है इकोनॉमिकली, और उन्होंने उनकी
ये असेसमेंट है कि चाइनीज डू नॉट पोज अ रियल थ्रेट टू अमेरिका ऑन द वॉर फ्रंट, बट दे डू इन द इकोनॉमिक फ्रंट। ओके, उनको रशिया से ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑन द वॉर फ्रंट, मतलब कि मिलिट्री के हिसाब से, और चाइना से उनको बेसिकली इकोनॉमिक थ्रेट लगता है। तो इसलिए उन्होंने पूरा पिवट करा है, पिवट मतलब कि शिफ्ट करा है फोकस इंडो पैसिफिक से इंडिया को यूज करने की बजाय वो पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज को कर रहे हैं। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है और उसको यूज करके हो सकता है ट्रम्प अपने कुछ पैसे बना रहे हो, एंड डीप स्टेट ने कहा हो कि आप बना लो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक फॉलो अप वीडियो दूंगा, लेकिन अभी मैं जो मैंने आपको पूरा डिफरेंट व्यूज सुनाए हैं, उसके लिए आपका क्या रिएक्शन है मैं वो सुनना चाहता हूँ। आपके हिसाब से क्या एक या दो की रीजंस हैं कि अमेरिका इतना क्लियर शिफ्ट अवे करा है इंडिया से? सो सिर्फ पाकिस्तान को उन्होंने चूज नहीं करा है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी एक्शंस लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि आर दे अट्रैक्टेड टू पाकिस्तान फॉर सम रीजंस, और ये है कि दे आर जस्ट इरिटेटेड विद इंडिया, मतलब कि उन्हें वो नहीं मिल रहा है इंडिया से जो वो चाहते थे। क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पिछले 1 साल में कि पाकिस्तान सडनली ग्रो कर गया हो, उन्हें बहुत एनर्जी मिल गई हो, या कोई क्रिटिकल मिनरल्स मिल गए हो, कोई वेपनरी डेवलप कर ली हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड बाय द वे, ये जो उज़ैर हैं जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक और पॉइंट बोला कि भाई पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री ने इंडिया के खिलाफ खड़े होके बड़ा अच्छा लड़ा, स्पेशली एयरफोर्स ने, और प्लेन गिराए। अब ये एक्चुअली में ये छलावा है, और मैंने आपको वो वीडियो जो दिखाया, जो टीआरटी टर्की का नेटवर्क है, उसमें वो ब्रिटिश एक बंदा है, वो ये बोल रहा है कि भाई इंडिया ने तो पाकिस्तान को पैनिक में डाल दिया था कि भाई हम अपने आप को सिक्योर कैसे करेंगे, इसलिए वो सऊदीज के पास भागे हैं। सो एंड सऊदी अरेबिया इज नॉट गोइंग टू बॉम्ब इंडिया, उनके अपनी रिफाइनरीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, एंड वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, इसको अनकवर करना का मतलब होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 6 महीने में ये पूरा जो गेम है ये अनरेवल होगा, और कुछ कंट्रीज जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, कुछ फेल हो जाएंगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट था टू शो यू ऑल द साइड्स, क्या कह रहे हैं लोग, और मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ये शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।